Okay, now coming to the next topic, how people can change their environment. Okay, in order to survive, people have to make use of things in the environments they live in. तो इंसानों को जिंदा रहने के लिए क्या होता है कि जिस इलाके में वो भी जाते हैं तो उस इलाके से वो चीज़ें जो हैं बनाते हैं या यूज़ करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, ठीक है? दिस ऑफ़न इन्वॉल्व्स चेंजिंग देयर एनवायरनमेंट टू सूट देयर नीड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एनवायरनमेंट अगर ह्यूमन बीइंग्स के लिए सूटेबल नहीं है, तो इंसान क्या कर सकता है, उसको मॉडिफ़ाई कर सकता है, उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो एनवायरनमेंट को बना सकता है। हाउसेज़ आर बिल्ट, रोड्स एंड पोर्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लोग नई जगह पे गए हैं, एक लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल हैं, ठीक है? अब वो किसी नई जगह पे गए तो फर्स्ट थिंग दे वुड बी डूइंग इज दे वुड बी बिल्डिंग देयर ओन houses. Okay, then for easy traveling and transportation of goods they would be constructing roads. And then if they want anything from outside, for example if they are living near a coast, so they would be building a पोर्ट, सी पोर्ट बनाएंगे कि जी वहाँ पे कश्तियाँ आ सकें, जा सकें, सामान ज़रूरियात ज़िंदगी का आ सके. सो बेसिकली दिस इज़ हाउ पीपल चेंज देयर इन्वायरमेंट्स. ठीक है, ports are constructed, forests are cut down, and rivers are cleared, and minerals are removed from the ground. So क्या होता है, definitely for their living for living purposes, if there's a forest around them, they would cut the forest and they would make new way for the roads and new way for the new houses to be constructed. And rivers and land would have minerals removed from it. Matlab resources definitely would be using the resources of those of the from that environment. So this is how people actually they change the environment when they move in. Okay, and they basically turn the environment to meet their own needs. Okay, number farming is our, this is how basically अब farming जो है लोग करते हैं, and it is also how people change the environment. Okay, now look at this pic. This is of figure 3.6 working in rice fields in China. So this is a picture in which people are people have converted the natural environment, ठीक है, the physical environment to meet their needs. They have made a farm और वहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं. Okay, okay जी. Farming. Figure 3.6 is an environment that has been changed by human activity. Okay, now this picture is an environment. This is a area which has been changed by the human beings. Okay, before farmers came to this area, it was covered with trees and bushes. A small river ran across the gentle slopes. तो इस एरिया में आने से पहले क्या था कि यहाँ पे फॉरेस्ट हुआ करता था. So what people did, they came and they cut this forest. ठीक है, and also a small river ran across the gentle slopes. मतलब ये mountainous area था. ठीक है. When people arrived, they began to clear the vegetation from the slopes. तो slopes जो थी पहाड़ की जो slanted जो surface होती है इसे slope कहते हैं. ठीक है, irrigation canals and drains were built to make sure crops could have enough water. So people came and they cleared all the vegetation. They cut down the trees, they cleared the forest. Okay, and then they built canals. उन्होंने नाले बनाए, ठीक है, और drains वगैरह बनाए ताकि वो जो है अपनी फसलों को पानी पहुंचा सकें. And the soils were drained. और soil भी जो थी वो उसको भी drain किया गया. The land was leveled for easy use of machinery as well as for drainage. तो उन्होंने क्या किया, definitely drainage आपको पता है it's a part of human environment. You can't have water standing, so वो क्या करते हैं कि drainage बनाते हैं पानी का भी. ठीक है, और अब definitely land को level करना है, land को बिल्कुल plain करना है, so they have used heavy machinery for it as well. Farm buildings and roads were constructed. तो farming से related जितनी भी buildings थी और roads जो था वो बनाए गए. In other words, the physical environment was changed into human environment over time. So, by the passage of time, physical environment was slowly basically changed to meet or to suit the needs of the human beings. ठीक है, अब तो ये क्या हुआ कि change into a human environment. Some features of the physical environment remain, such as the land itself. Okay, the climate. So कुछ features इस physical environment का रहे हैं, जिस तरह कि land हो गया. land तो आप नहीं गायब कर सकते ना. So you are having this soil और उसकी climate उस area का जो climate feature है. People and environment are now strongly linked in this area. So people और लोग जो हैं वो they are using and they are very closely hooked together. ठीक है, with each other. Now coming to the next one, the physical environment as a natural resource. Okay, अब physical environment को जो है हमने as a natural resource लेना है कि हम लोग physical environment से क्या
कुदरती मादनियात जो हैं वो हासिल करते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जिस तरह पेट्रोल सॉरी ऑयल हो गया आपका, ठीक है, जिस तरह आपके मिनरल्स हो गए, जिस तरह आपके गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, डिफरेंट चीज़ें जो हैं ये एक्चुअली आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ओके, the Earth's physical environment provide people with the resources needed to survive and progress. So physical environments क्या करते हैं, लोगों को resources provide करते हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें और ज़िंदा भी रह सकें। A resource is something that can be used to satisfy human needs. तो अब यहाँ पे रिसोर्स अगर फार्मिंग की देखें तो यहाँ पे क्या है कि फूड एज अ रिसोर्स जो है वो हमें मिल रहा है ताकि हम लोग जो है अपनी एक हीट नीड है, एक्चुअली एक हंगर है हमारे अंदर, एक भूख है, उसको सेटिस्फाई कर सकें क्रॉप्स खाकर। There are natural resources such as land and water that people can use for farming and building towns and cities. So natural resources जिस तरह के land हो गया हमारे पास, water हो गया, तो हम लोग बेसिकली यूज़ कर सकते हैं इसको फार्मिंग के लिए भी और ये कि अपने कस्बे या अपनी शहरों को बनाने के लिए। Natural resources are made ह्यूमन रिसोर्सेज आर फीचर्स मेड बाय पीपल ऑफर बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, बेसिकली वो लोग बनाते हैं और यूज़ क्या करते हैं जी, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूड बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो क्या इंक्लूड करते हैं, बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी। ओके, और जो लैंड रिसोर्सेज होंगे या फिजिकल इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज होंगे वो क्या हो सकते हैं हमारे पास, वो हो सकते हैं वुड हो सकता है, ठीक है, ट्रीज हो सकते हैं, इट कैन बी क्रॉप्स, इट कैन बी फूड्स, सो बोथ आर लिंक्ड टुगेदर। ठीक है, मॉडर्न कम्युनिटीज़ कंटिन्यू टू यूज़ लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, वाटर फॉर सिटीज़ एंड टाउन्स एज वेल एज फार्मिंग, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, एयर फॉर ब्रीथिंग. So you can see how physical environment is necessary for मीटिंग द नीड्स ऑफ द मॉडर्न कम्युनिटीज़। कम्युनिटीज़ का मतलब होता है सोसाइटीज़। ठीक है, अब जो मॉडर्न सोसाइटी जैसे लाहौर की सोसाइटी है, ठीक है, अब लाहौरियों को क्या चाहिए कि जी लैंड चाहिए ताकि वो गल्ला उगा सकें, ठीक है, अपने लिए क्लीन वाटर चाहिए, ठीक है, ताकि वो फार्मिंग कर सकें, अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर सकें, ट्रेड के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, एयर फॉर ब्रीदिंग, डेफिनेटली इट्स अ बिग प्रॉब्लम इन अवर एनवायरनमेंट राइट नाउ, मिनरल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स सच एज पेट्रोल, स्टील एंड ओके एंड क्या लिखा हुआ है, एंड टिम्बर फॉर बिल्डिंग फर्नीचर एंड पेपर। सो मिनरल्स हमें चाहिए ताकि हम मैन्युफैक्चर कर सकें पेट्रोल, ताकि हम मैन्युफैक्चर कर सकें स्टील, ठीक है, लोहा भी हमारा आपको पता है ज़मीन से ही निकलता है, और टिम्बर बेसिकली आपको ट्रीज़ वगैरह से जो है वो मिलती है फॉर बिल्डिंग फर्नीचर एंड पेपर। इन दीज वेज द फिजिकल इन्वायरमेंट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स फॉर ह्यूमन्स। इस तरह जो है एक फिजिकल इन्वायरमेंट एक नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए, ठीक है, फॉर ह्यूमन्स टू मीट अवर नीड्स। ओके, okay, figure 3.7 ABC. Okay, what important natural resources can you see here? क्या देख सकते हैं जी यहाँ पे आप? You can see the water, you can see the trees, ठीक है, you can see the perfect clear sky, air is good. Then in this environment क्या होगा, बी ए में आपका बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हैं, ठीक है, बी में आपका जो है वो सी है और गुड इन्वायरमेंट ट्रीज़ हैं, और यहाँ पे बेसिकली सी में आप क्या देख सकते हैं, यू कैन सी द सनलाइट, ठीक है, यू कैन सी द ट्रीज़, ठीक है, फॉरेस्ट ही आप कहते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन सी इन दिस पिक। ओके जी, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ इंटर रिलेशनशिप ऑफ पीपल एंड इन्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। अब किस तरह जो है इंटर रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि आपस में जो इन रिलेशनशिप होती है, आपस में जो आपका ताल्लुक़ होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, दो चीज़ों के दरमियान जो रिश्ता होता है, और बेसिकली अब इसमें दो चीज़ें कौन सी हैं, एक ह्यूमन है और एक इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि किस तरह हमारा रिलेशनशिप जो है वो इन्वायरमेंट और लोगों का कहाँ कहाँ डिफरेंट होता है। ओके जी, चेंजेस मेड टू द फिजिकल इन्वायरमेंट बाय ह्यूमंस लाइक द वन डिस्क्राइब्ड ऑन पेज नंबर 34 हैव हैपेंड अक्रॉस अवर अर्थ। अब जिस तरह की ये इन्होंने पेज नंबर 34 में बताया है, तो ये बेसिकली चेंजेस जो हैं वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड हुई हैं। ठीक है, द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड एनवायरनमेंट हैज़ टेकन डिफरेंट फॉर्म्स बिकॉज पीपल हैव वेरी डिफरेंट नीड्स एंड बिकॉज इन्वायरमेंट्स वेरी सो मच थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो बेसिकली क्या है, नो इन्वायरमेंट इज सेम। ठीक है, इन्वायरमेंट्स आर डिफरेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कितना हम लोग इस इन्वायरमेंट को यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, और लोगों की क्या नीड्स हैं एक्चुअली। अगर फॉर एग्जांपल एक बहुत ही बैकवर्ड सोसाइटी है, फॉर एग्जांपल टेक द ट्राइब्स इन अमेज़न दैट इज़ इन ब्राज़ील, सो दे आर नॉट सोफिस्टिकेटेड पीपल। वो लोग अभी भी जो हैं वो जंगल में रह रहे हैं, एंड
their needs are very limited, their needs are very basic. All they need is food actually. They don't have cars for traveling, they haven't built any roads in that area, ठीक है. So वो एक जंगली कबीले की तरह जो है वो रह रहे हैं. तो अब डेफिनेटली वहाँ के जो एरिया के लोग हैं उनकी नीड्स डिफरेंट हैं, एंड दे आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट physical environment of theirs like we do, like we modern people do. Okay, सो बेसिकली नीड्स लोगों की डिफरेंट है, और ये कि इन्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं एरियाज़ के अंदर, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर. अब फिगर 3.8 देखें. अ फार्मर प्रिपेयरिंग हिज लैंड फॉर प्लांटिंग इन इंडिया. अब यहाँ पे किसान क्या कर रहा है कि अपना लैंड प्रिपेयर कर रहा है ताकि वो प्लो कर रहा है, इज प्लोइंग द फील्ड्स एक्चुअली, और हल चला रहा है और इसमें लगाएगा अपने क्रॉप्स. सम कम्युनिटीज़ आर still dependent on the physical environment to directly supply their food. अब कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं वो बेसिकली अपने इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं ताकि वो अपना फूड जो है वो सप्लाई कर सके. क्लोथिंग एंड शेल्टर सच एज द फार्मिंग कम्युनिटीज़ इन इंडिया. जिस तरह के कम्युनिटीज़ इन इंडिया जो हैं, सोसाइटीज़ इन इंडिया जो हैं वो अपनी फिजिकल इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं. फॉर एग्जांपल फॉर फूड, फॉर क्लोथिंग एंड फॉर शेल्टर, ठीक है, एज शोन इन फिगर 3.8. Okay, now coming to the next one. Now you will learn how farming communities in the highlands of Papua New Guinea are very dependent on the physical environment around them. अब आप लर्न करेंगे कि जिस तरह की कम्युनिटी सोसाइटीज़ जो कि पापुआ न्यू गिनी जो है बेसिकली इट्स a country that is located right above ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एक चेन ऑफ आइलैंड्स है. तो ये पापुआ गिनी भी जो है एक बहुत बड़ा, इट्स नॉट एक्चुअली एन आइलैंड, लेकिन ये है कि इट्स अ लैंड एंड इट इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर. एक बड़ा सा आइलैंड आप कह दें, इट्स लाइक अ आइलैंड कंट्री आप ये कह दें, ठीक है. सो हाईलैंड्स में, हाईलैंड्स का मतलब है द प्लेसेस दैट आर एलिवेटेड, जो थोड़ी सी ऊंचाई पे जो जगह है, ठीक है. पापुआ न्यू गिनी के जो लोग हैं वो बहुत डिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं अपनी फिजिकल इन्वायरमेंट पे, ठीक है. हाउ एवर अदर कम्युनिटीज़ आर मोर डिपेंडेंट ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट. दे हैव हेल्प टू क्रिएट टू प्रोवाइड देम विद देयर बेसिक नीड्स. लेकिन अब दूसरा डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो हैं, एक दूसरी तरह की कम्युनिटी भी जो है वो ज़्यादा डिपेंडेंट है किस पे, ह्यूमन इन्वायरमेंट पे, ठीक है. क्योंकि ह्यूमन इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट इसलिए क्योंकि बेसिक नीड्स मीट हो रहे हैं, ठीक है. अब दो तरह के आपको उन्होंने बता दिए हैं. एक पापुआ गिनी के जो लोग हैं वो डिपेंडेंट हैं प्योरली अपनी फिजिकल इन्वायरमेंट पे, और इसी तरह एक दूसरी कंट्री जिसका नाम सिंगापुर है, उसके लोग जो हैं वो डिपेंडेंट हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट पे कि अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें, ठीक है. सिंगापुर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच कम्युनिटी. सो सिंगापुर जो है वो बेसिकली अब एक इन्वायरमेंट है सच इस तरह की सोसाइटीज़ की. कैन यू गिव एग्जाम्पल ऑफ हाउ सिंगापुर और एनी अदर कंट्री इज स्टिल वेरी डिपेंडेंट ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट. तो आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस तरह सिंगापुर या कोई ऐसी कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपनी ह्यूमन इन्वायरमेंट में. यस, फॉर एग्जाम्पल टेक द कम्युनिटीज़ ऑफ द अरेबियन लैंड्स. सऊदी अरेबिया की कम्युनिटी देख लें, ठीक है, उसकी कम्युनिटी देख लें, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कम्युनिटी देख लें. सो दे आर लाइक मॉडर्न कम्युनिटीज़ हैं, बट द फिज़िकल इन्वायरमेंट इट डज़ नॉट सूट दैम, ठीक है. अब मिडल ईस्ट की जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है उसमें आप फार्मिंग वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली ऑन द लैंड, बट यू कैन यूज़ अदर टाइप्स ऑफ फार्मिंग मेथड, जैसा हाइड्रो, मेरे ख्याल से हाइड्रो एग्रीकल्चर आजकल आया हुआ है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. बट दैट इज़ लाइक ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, नॉट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. अब सिंगापुर के जो लोग हैं वो बेसिकली डिपेंड करते हैं सी पोर्ट्स पे, ठीक है, ताकि उनके लिए जो माल आता है खाने पीने का वो दूसरी कंट्रीज से आए, ठीक है. एंड इसी तरह ही वो अपना दे आर मैनेजिंग टू लिव एक्चुअली. सो आई गेस it is enough, and in our next class inshallah we would be reading the simple farming system in Papua New Guinea, ठीक है. So we are going to see how the physical community, the community that is totally dependent upon their physical environment, like the community that is living in Papua New Guinea, and then we are going to contrast them. We are going to compare them with the community that is living that is living in Singapore and is totally dependent upon its human environment, ठीक है. So inshallah we would be having
a good understanding about how people and their environments they are interconnected to each other. Okay, so inshallah, in our next class we would be reading from here. Thank you.